Let us ask, Shabnam, are you there? Yes, I'm here. I'm here. Yeah, I think there are some questions in the chat box, and maybe there are questions that people would like to ask. So maybe, yeah. Take Siddha Lingveshwar's question. He's there. He's been raising his hand for a while. Okay. Yes. सर आपको मेरा वॉइस आ रहा है ना जी? Yes, we can hear you. हाँ जी. You can ask in English also. हाँ, I can. Sir, I am from Karnataka. Okay. So, sir, I have started one petition in change.org asking all mobile companies to manufacture Android keypad phones. So, under which government department they can give direction to all companies under telecom authority or it come under industry? So इसमें ना दो तीन चीजें हैं. एक तो हमारा ना लॉ में We can't hear you, Ankit. I think we lost Ankit. Yeah. So, Siddheshwar, your question is that you want Android phones with keypad. Is that what you're saying? Yeah. For visually impaired and senior citizen, lots of people are unable to use touchscreen properly. That's right. So you want to know which ministry would be should be approached. I think you should probably approach both Ministry of Telecom as well as the Ministry of Industry. Hello. Yeah, sorry, we had missed you. I am so sorry. This laptop kind of crashed and I am now joining in from my phone. Yeah. Now, so I was saying a couple of things, right? Like the law also says that consumer electronics, the government will make sure or make an effort to create at least one module or one model which is universally designed and accessible. Okay? Yeah, I think section 43 में भी mentioned है. And जब आपने बोला, I think that 2-3 ministries में एक ministry तो नहीं है. Because आप टेलीकॉम के बारे में बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड TRAI ये भी आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री भी आएगा क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं. सो आई थिंक इसमें मल्टी ऑफ कोर्स हमारी जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री वो भी आपको उसमें उनको भी लूप में रखना पड़ेगा. Certainly, yeah. Yeah, Shabnam, next. We have somebody, Abhay Pratap, who says even SBI is not accessible. Sorry? Abhay Pratap says that SBI. State Bank of India is not accessible. तो ये तो क्लियरली देखिए गवर्नमेंट की है एस्टैब्लिशमेंट, इसको तो आप IPWD एक्ट पे ले सकते हैं उनको. टेल देम सेक्शन 46 भी है हमारा सर्विसेज के बारे में. I'm hearing my own echo. We can hear you. Can you hear? You're okay. Yeah, Okay. Ankit, there are 2 accounts right now, and when you speak, that's why that. Yeah. One you've put on mute, so that's okay. Just a second. Yeah. Okay, can you hear me now? Only once, yes, right? Yes. Okay, great. हाँ, so SBI में तो I think RBI को लिखिए. मेरे ख्याल से RBI is very हमने recently एक मैंने सुना है कि possibly ICICI बैंक को लिखा हमारे सेक्टर में से किसी ने, और उन्होंने RBI को भी लिखा because ICICI का mobile app became inaccessible. So they have promised that by the end of October, mid-October, end October, they will address this and they will make the application accessible. So
और यहाँ पे तो स्पेशली अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बोले तो आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइंस ऑलरेडी आई हुई है. सो अगर एसबीआई नहीं सुन रहा तो प्लीज आरबीआई को लिखिए, इसका तो रेजोल्यूशन निकलेगा. और मुझे एग्जैक्टली स्पेसिफिक नहीं मालूम कि किस पार्ट ऑफ एसबीआई इज नॉट एक्सेसिबल, बट डेफिनेटली in fact banking is one of the most mature industry and services I would say जिसमें active standards या guidelines गवर्नमेंट से आए हैं या उनके रेगुलेटर से आए हैं. Yeah, there are a few hands lifted. Yeah. Rakesh Paswan, आप unmute कीजिए please. Alt A दबाइए या वो mute बटन दबाइए. राकेश जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपना सवाल पूछने के लिए. Okay, so we'll go to Sharad Tripathi until Rakesh can unmute himself and ask the question. Sure. सर मैं सिद्धलिंगेश्वर फिर से बोल रहा हूँ. सर ये है ना वो मैंने ट्वीट किया टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम अथॉरिटी को, मेरा पिटीशन लिंक है ना उसको टैग करके उनको ट्वीट किया हूँ. कोई रेस्पॉन्स आएगा कैसे सर? वो आई वुड से कि ट्विटर पे इट्स गुड टू क्रिएट नॉइज, बट गवर्नमेंट हमें समझना है कि गवर्नमेंट मशीनरी ना लेटर्स से चलती है. थोड़ा बहुत ईमेल लिखना वो लोग एक्सेप्ट करना शुरू किए, बट आई थिंक वो आपको चिट्ठियां लिखनी पड़ेगी. वो देखेंगे वो डॉक्यूमेंट उनका प्रॉपर उसका बही खाता बनता है उनके सिस्टम में, एंड एवरी लेटर दैट कम्स इन दे ऑट टू रिस्पॉन्ड टू दैट. ठीक है. अगर आप ट्विटर पे करेंगे तो गवर्नमेंट इज नीदर, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपल्शन या कोई उन पे मैंडेटरी नहीं है. और अगर एक आधा आइसोलेटेड ट्वीट होगा तो देखिए इतने बड़े यूनिवर्स में अगर हमारा एक आधा ट्वीट आएगा तो वो इग्नोर भी कर देंगे. तो एक्चुअली पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने ट्विटर हैंडल रखा होता है. हाँ, तो उनका है कि हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना. सो ट्विटर अगेन इज अ ब्रॉडकास्टिंग मीडियम एंड नॉट एन एंगेजिंग मीडियम. एंगेजिंग मीडियम. ठीक है. तो आप उनको, मैं तो यही बोलूंगा कि लेटर लिखिए अगर या ईमेल भेजिए. लेटर अगर भेजेंगे तो स्पीड पोस्ट से भेजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए ताकि आपको डिलीवरी का एक्नॉलेजमेंट रहे. और वरना ईमेल लिखिए, ईमेल पे तो ट्रेल्स मिल ही जाते हैं. उनकी वेबसाइट पे जाए, उनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडीज हैं उन पे लिखिए, और मेल लिखने के बाद कॉल करिए कि ये हमारी तरफ से ये चिट्ठी गई है आपको, प्लीज आप इस पे हमारी हेल्प करें पहले. एंड मैं ये जरूर बोलूंगा कि पहले टोन या पहले चीज में कभी भी एग्रेसिव ना होइए कि भाई हमारे आंदोलन है, हमारे अधिकार है, प्लीज हमें दीजिए. ऐसा नहीं, थोड़ा सॉफ्टली उनसे बात करिए. जस्ट अवेयर करना है उनको, अवेयर करना है कि एंड आपके change.org से अगर आपको सपोज 500,000 जितने भी आपके वो मिले तो उनका भी नंबर दीजिए. 3,000 अभी साइन किया है. हाँ, सो बताइए कि 3,000 लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं. सो अगर उनका लिस्ट निकल सकता है, जो भी निकल सकता है डेटा, वो उनको भेजिए कि इट्स जस्ट नॉट मी एज अ पर्सन हु इज आस्किंग यू, there are hundreds of other people who are supporting this cause. But government के साथ letters, primarily letters चलते हैं या उनके साथ मेल मिलाप चलता है या ईमेल्स थोड़ा बहुत करते ज्यादातर. लेटर ऑफिशियली करस्पॉन्डेंस हाँ बेस्ट ईमेल से बेटर है. और दूसरा ये है तरीका, अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आरटीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है. आप पूछ सकते हैं, अगर आपने सपोज आपका चेंज, आपका सपोज ये है एंड्रॉइड फोन पे, राइट, तो आप पूछ सकते हैं कि लॉ में ये प्रोविजन है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कोई गाइडलाइंस दी है कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स को कि एटलीस्ट एक कीबोर्ड फ्रेंडली वो निकले, तो आरटीआई से उससे आपको रिस्पांस उतना तो मिल ही जाएगा कि उन्होंने किया है कि नहीं किया. में एक फोन आया था Q2, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, मोर देन 35,000. यहाँ इंडिया में वो उतना बजट का फोन नहीं लेता ना लोग, इसलिए अच्छा होता था. तो वो तो बोला जा सकता है. इसी के लिए एज ए सेट ये 2-3 चीजें हैं. आप उनसे आरटीआई से पहले, आरटीआई में तो देखो कंपल्सरली उनको बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने गाइडलाइंस इशू करी है कि नहीं करी इस चीज में. एंड वहां से आप अपनी एडवोकेसी आगे भी बढ़ा सकते हैं कि इतने सारे लोग ऑलरेडी सपोर्ट भी कर रहे हैं
और आपका इतना सारा आप इसको लॉ में भी मेंशन है, तो प्लीज आपको इसको इंक्लूड करिए। हाँ सर, एक टेलीकॉम अथॉरिटी और एक इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी भी आता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। Yeah. मेटी Yeah. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हो गया, TRAI अलग है, उनका रेगुलेटर है, उनसे बात करिए। और आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग तो नहीं आएगा, बट आपका इंडस्ट्रीज में भी डेफिनेटली आएगा। Right. इनफैक्ट ये जो आपका कॉमर्स सॉरी कॉर्पोरेट अफेयर्स, आस्क Yeah. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। Yeah, I think we'll take the next question. Sharat Tripathi. Thank you, Siddheshwar. Raise hand. Rakesh Agwin. Raise hand. New participants. Can you listen? Go ahead. Yes, Sharad. Yes. हाँ, तो वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन। आई थैंक टू आईवे टीम। जॉर्ज सर से एक रिक्वेस्ट ये रहेगा, जितने भी सेशन ये चल रहे हैं बहुत बढ़िया है। मैंने रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पे भी डाला था, व्हाट्सएप पर, कि सर ये जो सारे सेशंस हैं इसको हम यूट्यूब पे अगर ले आए तो हम इनको कभी भी रेफर कर सकते हैं YouTube में आगे है, के लिए। YouTube में है। ओके सर। तो मैं लिंक इसका मुझे नहीं मिल पाया, तो सर अगर व्हाट्सएप पे अगर आ जाएगा लिंक तो हम आगे इसको एक्सेस कर पाएंगे सर चैनल को। Sure. दूसरा सर, जो अभी हमारे गेस्ट हैं उनसे एक छोटा सा मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब व्हेन आई वाज 24-25 जब मैं एक्टिविज्म राजस्थान में कर रहा था, तो जितने भी ये मैरिज गार्डन्स हैं उनको उनके रैंप को लेकर और एक्सेसिबिलिटी को लेकर मैंने एक यहाँ पर कमिश्नर डिसेबिलिटीज को एक एप्लीकेशन मूव किया इन 2013 और 14। आप सोचेंगे जब पहला हियरिंग हुआ, मुझे कमिश्नर उस समय एक्चुअली होता ये है कि कमिश्नर अपॉइंट नहीं हुए थे और वो इट वाज एडिशनल चार्ज टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ सोशल जस्टिस फॉर द स्टेट। उन्होंने मुझे पहली हियरिंग में इतना डांटा, एंड ही सेड मी कि तुम ये क्या पॉलिटिकल और इस तरह का मामला उठा के ले आए हो। मैं क्या, राजस्थान में 10,000 मैरिज गार्डन्स हैं, मैं सभी के खिलाफ नोटिस इशू करूंगा तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग इशू होने वाला है। सीएम विल स्कोल्ड मी लाइक एनीथिंग, है ना। तो मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। आपके आसपास का कोई मैरिज गार्डन हो 4-5 तो आप बता दीजिए, एंड आई विल, मैं उनके लिए ट्राई करूंगा कि उनको हम एक्सेसिबल कर पाए। इट वाज बिफोर द न्यू लॉ। खैर, दिस वाज बाय द कमिश्नर। यस। तो ये उस समय का बात है। तो उन्होंने मुझे डांट दिया। अब तो देखिए, अगर मैरिज हॉल इज अ सर्विस, राइट? यस। तो आपके पास तो लॉ का है पूरा, और अगर नया बना है तो फिजिकल एनवायरनमेंट से भी वो, बिकॉज पब्लिक एट लार्ज है। यस। तो माय क्वेश्चन इज सर कि अभी जो नए तीर्थ आ गए हैं तो हमारे नए लॉ में, तो अब इसके लिए क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा? फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं इसके लिए मुझे कंप्लेंट मूव करना है तो ये कैसे इसको हम आगे रेमेडी अगर हमें लेना है या हमें इसकी लीगल प्रोसीडिंग इस पे करनी है आगे, तो हाउ इट विल बी मूव्ड और रेमेडी कैसे मिलेगी? तो वो एक वाली बात थोड़ा सा, इससे क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमें मिल पाएगा, अदरवाइज हम कैसे इसको पेनलाइज कर पाएंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मिल सकता है, बट अभी फॉर एग्जांपल जैसे सर लेट मी कंप्लीट सर। अभी भी एक एप्लीकेशन आई हैव मूव्ड इन म्युनिसिपैलिटी ऑफ जयपुर फॉर मेकिंग accessible to these all सुलभ टॉयलेट्स, लाइक यू नो पब्लिक टॉयलेट्स इन जयपुर सिटी। तो अभी से मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। ओके, सो देखिए, आपने पहले जब किया था तो लॉ से पहले किया था, ठीक है, तब तो कमिश्नर के पास भी इतनी अथॉरिटीज नहीं थी। आज तो इस लॉ में लिखा हुआ है कि द कमिश्नर हैज द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है। सो द कमिश्नर के पास भी थोड़ा तो पावर है, पहले से ज्यादा है, ऑल्दो इतना नहीं है कि वो उसको जेल या इम्प्रिजनमेंट अनाउंस कर दे एकदम से, बट डेफिनेटली फाइन वाइन तो इशू करवा ही देता है। तो आज की डेट में कमिश्नर को अप्रोच करके आप ये बैंक्वेट हॉल्स के लिए डेफिनेटली बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से बैंक्वेट या मैरिज जब हम बात करते हैं, दिस इज अ एनवायरनमेंट, अ बिल्ट एनवायरनमेंट व्हिच इज एक्सेस्ड बाय पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, जो उनका डेफिनेशन है बिल्डिंग्स के लिए, पब्लिक बिल्डिंग का एनी बिल्ट एनवायरनमेंट व्हिच इज एक्सेस्ड बाय पब्लिक एट लार्ज। तो ऑब्वियसली मैरिज हॉल्स आर सपोज्ड टू बी एक्सेस्ड बाय पीपल बाय लार्ज, तो वो उसकी डेफिनेशन में भी फिट होगा और सर्विसेज की भी डेफिनेशन में फिट होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आई वुड से कि यूजिंग दोस टू प्रोविजंस एंड द डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग एंड पब्लिक सर्विसेज, आप जाइए, बोलिए कि करना है। सर्विसेज तो एज आई सेड 2 साल में एक्सेसिबल हो जानी चाहिए थी, और बिल्ट एनवायरनमेंट
अगर अब तक नहीं हुआ तो अगले 1 साल में हो जाना चाहिए। तो उससे करिए। और मैंने बताया कि तो दिया है लॉ में, इंडिविजुअल्स के लिए भी दिया है, और अगर कोई कंपनी उसके लिए लायबल है, सपोज ये बैंक्वेट हॉल कोई पर्टिकुलर कंपनी के अंडर में, तो एनीबडी हु इज मेड इन चार्ज, जो उनका सीईओ है या जो भी है, they can be fined or they could be in trouble. They have to be made answerable to that. ठीक है, तो वो वहां पे कर सकते हैं। और अगर कमिश्नर के यहाँ से रेजोल्यूशन नहीं मिलता तो चीफ कमिश्नर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है। There's also this whole special courts, अभी कितने states ने इशू कर दिए हैं कि नहीं कर रहे हैं, but then there are special courts which are to be coming up for at all districts for people with disabilities. तो आप वहां पे भी कर सकते हो, और वहां पे तो बाय लॉ आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मिलेगा। नालसा सालसा जो नेशनल क्या नाम है, नालसा क्या था, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज इन इंडिया, आई थिंक, जो that's right, yeah. राइट। सो नेशनल लीगल अथॉरिटीज और स्टेट लीगल अथॉरिटीज को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट में भी स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे पीपल विद डिसेबिलिटीज को वहां पे वो सपोर्ट करते हैं। सो यू नो यू कुड परस्यू दिस फर्दर। Yeah, प्रेसिडेंस thanks. नहीं है, मेरे को नहीं लगता प्रेसिडेंस है कि किसी को लॉ में वो किया है, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट्स। I think Rakesh Paswan has a question. Is that correct, Shabnam? Audio now unmuted. हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ सर, तो लाइक मैं अभी तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अभी भी आजकल ऐसा होता है कि मैनी बैंक्स, लाइक सम बैंक्स, Audio now दे unmuted. डोंट दिस थिंग इशू डेबिट कार्ड्स टू वीआई पीपल। तो और कहीं कहीं पे भी टॉकिंग एटीएम का तो कहाँ पर, मतलब इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगेन ऑम्बड्समैन डिपार्टमेंट है। अगर आपको कोई बैंक नहीं दे रहा डेबिट कार्ड Bracket आज की password डेट lower में, hand. तो प्लीज गवर्नमेंट जो आपके ब्रांच मैनेजर है उनको बोलिए। वो भी नहीं सुन रहे तो बैंक आरबीआई का ऑम्बड्समैन है, उन पे फाइल करिए। यहाँ पे इस पे तो आई थिंक स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस दी गई हैं, इसमें तो कोई वो नहीं होना चाहिए। टॉकिंग एटीएम, आई थिंक टॉकिंग एटीएम india.org में वो काफी सारी उन लोग ने लिस्टेड किए हुए हैं। वो आई थिंक प्रशांत नायक और बाकी के सहयोगी दोस्त उनकी काफी कोशिश करते हैं उसको रेगुलरली अपडेट करने की। तो आप उस वेबसाइट पे जाके देखिए कि कौन सा आपके नियरेस्ट टॉकिंग एटीएम है। और अगर आपके आसपास में कोई पर्टिकुलर अकाउंट है और जिसमें नहीं है, तो आप उनके मैनेजर को भी लिख सकते हैं कि प्लीज वो टॉकिंग एटीएम वाला मॉडल इंस्टॉल करिए। एटलीस्ट अपनी तरफ से एक लेटर ऑफ अपील तो डाल ही सकते हैं उसमें। पर डेफिनेटली अगर आपको बैंकिंग सर्विस डिनाई की जा रही है, इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का ये पूरा मामला हो जाता है। तो ऑब्वियसली दैट इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल, एंड इसके ऊपर तो आप मल्टीपल लेवल्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। So main person is the RBI ombudsman. Yes, and वहाँ पे होता है, आई थिंक ombudsman department is fairly active, and again they first expect you to go Yeah. to the branch manager, and within a month if you don't get a resolution, then they ask you to write to the ombudsman department, and though they are very active. Right. Excuse me, sir. Yes. Shabana. Audio now unmuted. हेलो। पूछिए। हाँ सर, यूनियन बैंक में भी फॉर्म निकले हैं, वैकेंसी भी है, और उसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और उसमें एमबीए वगैरह किया होना चाहिए। तो ये तो ब्लाइंड ने किया होता ही नहीं है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह। तो फिर वैकेंसी कैसे निकाली, और फिर उस पे हम लोग फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो इस पे क्या सोल्यूशन है? मैम देखिए, कोई जॉब की तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, स्किल रिक्वायरमेंट, और ऐसा तो नहीं है कि ब्लाइंड में एमबीए नहीं मिलेंगे। मैं खुद एमबीए हूँ, इंडिया के वन ऑफ द टॉप 5 बी स्कूल से हूँ, तो होते हैं ब्लाइंड में भी। सर कोई वो हो सकते हैं, सभी तो नहीं ना, और एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। सभी तो वो तो हर जगह देखो, हर देखिए, एक होता है जॉब का स्किल्स, एसेंशियल स्किल्स जो चाहिए होता है जॉब को करने के लिए, उसमें तो हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। बट डेफिनेटली अगर उनको एडिक्वेट सप्लाई नहीं मिलती उससे, सपोज
उनको 5 जॉब चाहिए और उनको 5 लोग नहीं मिलते, तो दे कैन पॉसिबली लोअर। आज मैं एम्प्लॉयमेंट पे स्पेसिफिकली मैं इस पे प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ और मैं राइट पर्सन भी नहीं होऊंगा कि स्किल्स अगर कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो लोग, बट मैं तो यही बोलूंगा कि हम Yeah, ऐसा and I नहीं है think, कि no, and I think, Ankit, any particular post करेक्ट calls for specific qualifications. करेक्ट It doesn't mean that it's open to all blind candidates. करेक्ट Yes. People who have the qualifications will apply for it. करेक्ट करेक्ट So, एंड हर जॉब की एक इनहेरेंट क्वालिफिकेशंस या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। आज वो ड्राइवर की पोजीशन निकाल देंगे और But ठीक है sir, उनको इसमें- 3% 4% रिजर्वेशन देना है मैडम, अगर ड्राइवर की पोजीशन निकाल देंगे, बट ड्राइवर की जॉब हम ब्लाइंड लोग नहीं कर सकते ना, लॉ के हिसाब से तो 4% शायद गवर्नमेंट को उसके लिए भी रखनी पड़ेगी, तो फिर बट फिर वो वैकेशन किसी भी और निकालनी नहीं चाहिए ना सर? नहीं तो फिर वो किसी और डिसेबिलिटी के लिए अकोमोडेट होती है। हर जॉब की एक इनहेरेंट गरिमा होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उस पे वो लोग लोअर नहीं कर सकते हैं। right. Any other questions, Shabnam? No, Rakesh has again raised his hand. Rakesh, Yeah. आप सवाल पूछना चाहते हैं अभी? No, madam. Thank you. No, Rakesh. Rakesh? No, I think, no, I don't think there are any other questions right now. So, Ankit, now, this, the law was passed in 2016. The rules were published in 2017. 2019 has gone by. 2022 is going to go by. It's become a bit of a joke, these deadlines. And, there was a campaign in 2017 or 16, Accessible India. What are your Yes. comments on Accessible India, the campaign itself? Yeah. So I think जो लीडरशिप थी उस वक्त एक्सेसिबल इंडिया की, आई थिंक वो बहुत अमेजिंग थी। दैट कैंपेन हैज द हार्ट इन द राइट प्लेस, ठीक है। एंड 2015 में ये कैंपेन आया था, बिफोर द लॉ केम इन, ठीक है। Yeah. सो मेरे ख्याल से अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करूं तो इसकी अच्छाइयां, कुछ अच्छाइयां भी और काफी सारी हमें लिमिटेशंस भी दिखेंगी। अच्छाइयों में तो मैं ये बोलूंगा कि इसने गवर्नमेंट मशीनरी में एक्सेसिबिलिटी को एक पब्लिक डिस्कोर्स बना दिया था, एक पब्लिक के चर्चा का विषय बना दिया था। और मेरे को कई लोग बताते थे कि जैसे गवर्नमेंट की बसेस के पीछे एक्सेसिबल इंडिया के या सुगम्य भारत के बैनर्स या पोस्टर्स लगे हुए रहते थे। आई थिंक उस स्केल का अवेयरनेस बिल्डिंग मुझे नहीं लगता इससे पहले हमारे देश में कभी भी एक्सेसिबिलिटी को लेके हुआ था, ठीक है। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ा विन था। नाउ उसने ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस गोल्स बनाए और आई थिंक उनमें से एक भी गोल ऐसा नहीं है जो उन लोग ने पूरा हद तक पूरा अचीव किया है। मैंने जब लास्ट ईयर एसडीजीज पे मैं रिपोर्ट बना रहा था, आई थिंक हर एक मेजर जो अनाउंसमेंट था, बी इट 50 बिल्डिंग्स पर सिटीज, उसमें भी उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम रहा है। आई थिंक 20 से 25% था लास्ट ईयर जब मेरे पास वो डेटा था। सिमिलरली हमने बात किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 7% बसेस आर एक्सेसिबल। हम वेबसाइट्स की अगर बारे में बात करें तो लेस देन 50% ऑफ स्टेट वेबसाइट्स आर कंप्लाइंग टू GIGAW, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट ने बहुत एक हंगामा बीच में बचाया था कि 100 वेबसाइट्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सेसिबल है, बट मुझे मालूम है उसके बाद भी आधार मुझे अगर इंडिपेंडेंटली डाउनलोड करना हो तो वो एक्सेसिबल नहीं था, ठीक है। सिमिलरली कोविन में आज अगर आप देखें इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इतना बड़ा वैक्सीन, इतनी बड़ी महामारी के बारे में बात हो रही है, येट इट इज नॉट एक्सेसिबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारी चीजें तो डेफिनेटली एक एरियाज हैं जो कंप्लीटली मिस आउट रही हैं, जो मुझे लगता है हम लोग कर सकते थे। एंड एक्सेसिबल इंडिया में आई थिंक हम या तो वो लीडरशिप चेंज हो गई उसकी, इसके कारण उस पर वो एम्पिटस नहीं रहा। मुझे तो यानी वो एक पर्टिकुलर कैंपेन देख के उस समय पे मैं मोदी जी का फैन हो गया था कि यार ये एक प्राइम मिनिस्टर है जो डिसेबिलिटी को भी समझ रहा है,
बट फिर वो भी ठंडे पड़ गए इस चीज में, हमें दिव्यांग बना दिया, मंदिर में बिठा दिया. Right. Okay, so there is another from RV Rajan. Yeah, he says when insurance companies are not willing to provide life insurance or Mediclaim policies, even IRDA is not supporting. So in that case, where should we approach? High courts, I think that's a very good case. IRD and all, maybe I think कुछ notifications तो थे specifically for providing or not discriminating, but again discriminate अगर हो रहे हैं, अगर writing में है आपके पास proofs, तो I think let's go to the courts. It's about time that the insurance sector is made accountable for people with disabilities. और I think banking के अंदर तो फिर भी cases कम हो गए हैं discrimination के, but insurance continues to be a big area जहाँ पे lots of people are fighting. I think निपुण मल्होत्रा भी बीच में कुछ इंश्योरेंस पे काम कर रहे थे, सो उनके साथ जुड़ना अच्छा है, या आप अपनी तरफ से नोटिस भेजिए. Absolutely, I think insurance is a must, and unfortunately it's so unfortunate कि जो एक गवर्नमेंट का स्वावलंबन स्कीम था जो डिसेबिलिटी के लिए निकाला था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया. उस स्कीम को फंडिंग मिलनी पिछले आई थिंक 2-3 सालों से बंद हो गई है, which is very unfortunate. Right. So I think, Excuse me. yeah. Excuse me. I'm Satyanarayana. One more point also I would like to bring in this accessibility. You know, anybody need, if you look at that employee provident fund portal, that portal is also independently we cannot do, because it whatever captures it will ask, especially with the visual impairment, we cannot take it forward actually. Correct. I think CAPTCHA across government website, I think the government keeps saying it's a security tool, but I think today there are better tools, there are alternates available, there are accessible CAPTCHAs available, and then there are alternates like OTPs which can be used to make it more secured, right, and which are accessible. So I think government के साथ ये especially Ministry of Electronics के साथ, जो especially NIC के साथ मिलके इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है कि ये कैप्चा का परमानेंट सॉल्यूशन निकाले. It should be accessible, or It should be made accessible. हाँ, there are other alternates. अगर कैप्चा नहीं है, so आज तो globally accessible captcha, audio captchas होते हैं. There could be like a sum based captchas where you get a simple mathematical problem, or you could get there are other alternate methods like OTP हो गया, या आपको ऑडियो पे OTP आ जाए, फोन पे कॉल पे OTP आ जाए, या आपको SMS आ जाए जो आप जिस पे क्लिक कर दीजिए और वैलिडेट वेरीफाई कर दीजिए कि हाँ ये मैं ही हूँ. So there are so many methods of authentication. So I think government needs to be a little more agile and need, वो ये कि जब तक चल रहा है वो लोग चला रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा और we need to kind of go out to them and tell them that this doesn't work for us. Accessibility has actually it's become a very serious issue, and it's not just the law. The law is there, but I think you mentioned somewhere there's a lack of awareness. There's a lack of consciousness that accessibility is an important element of day-to-day life. Correct. I think also the people with disability are not being recognized as full citizens of the country. And there are many people who say disabled, why do we need to even consider them? So there is ignorance, there is apathy, Absolutely. and lack of consciousness. Yeah. So I think there is need for campaigns, and I think there is need for more and more people actually complaining about it. And what you said about appreciation of good deeds which are there, good experiences, good products which are accessible, if those could be shared in public, so that others also realize that okay, there are people who are coming out with accessible products, universal design, and so on. Yeah, because I'll tell you, ये बहुत practical example है. I know for sure कि Indigo के एक HR से बाद में because मैं इतने सारे mails भेजता हूँ, I actually got a call from a very senior person in Indigo saying कि we are so glad that you wrote this, and we've observed that you write very often, and this keeps us motivated to do this.
otherwise हमें लगता है यार हम इतना effort भी मार रहे हैं, nobody is bothered. So why should we even, and they're like, इसके अलावा अगर एक complain हो जाती है, कहीं से एक mishap हो जाता है, तो people, you know, move the mountain for that, but you know, there's absolutely no acknowledgement. And there was a similar feedback from a CIO of a product company for this. Yeah, how, you know, why should I do it? I don't even know how many people are using it. And मैं तो ये जरूर बोलूंगा सभी listeners से, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, iOS यूज करें या एंड्रॉइड यूज करें, प्लीज अगर आप एक कोई ऐप एक्सेसिबल नहीं है, उनकी प्ले स्टोर में जाइए, उनकी रेटिंग में लिखिए, 1 स्टार दीजिए और बताइए कि एक्सेसिबल नहीं है, इसको बनाइए। आप इसको एक्सेसिबल बना दीजिए, मैं इसको 5 स्टार की रेटिंग कर दूंगा। हम एक क्रिटिकल मास करेगा, इनका रेटिंग्स अगर इन्फ्लुएंस होने लग जाएंगे हमारे वोट से, वो लोग अपने आप करना शुरू कर देंगे। Right. Yep, I think on that note, I think we will say thank you to everybody. Thank you very much, ladies and gentlemen. आपने टाइम निकाला और इस सेशन को अटेंड किया। उम्मीद है कि कुछ जानकारी आपको मिला होगा। यही जो कंटेंट है ये हमारे YouTube चैनल में 1-2 दिनों में, अगले हफ्ते इसको डिस्प्ले किया जाएगा। Our YouTube channel is Highway India, EYEWAY India. तो Highway India YouTube channel में you will be able to see all our highway encounters का episodes. ये भी episode आपको मिल जाएगा. And Ankit, thank you very much for sparing your time, and it's been very, very useful, and you know, in very simple terms you kind of explain things. And hopefully this will motivate us to kind of keep asking questions and pointing out shortcomings so that we have a better India for people with disability. बहुत बहुत शुक्रिया, and thank you very much. And next month we'll come back again with another episode of Counters on the last Friday of September. So until then, good night and thank you.